Hare Krishna, the people who suicide, is this their own decision or it was already written in their destiny that this person's death will happen by suicide? Own decision. Why should you put it that it was destined? Spiritual knowledge is there to change your destiny, not live your destiny. Change your destiny. Spiritual life helps you to change your destiny. That's what Lord Shri Krishna says in the Bhagavad Gita. In the last, when he's concluding his sermon to Arjuna, he says, give up all varieties of religion. Surrender unto me, and I will remove all your sinful results of your sinful activities and your sinful activities. That means your life has changed. But that is only possible when you surrender. You follow the instructions of Supreme Lord, Lord Shri Krishna. For that, go to our website, givegita.com, and download the Bhagavad Gita course for free. Or go to Give Gita app, or you can basically dial us at 72100821000. WhatsApp us writing Gita, G-I-T-A. You will receive this course free of cost. And you will come to know the intricacies of karma. Thank you for asking the question. Please take care of your Krishna Bhakti. Hare Krishna. हरे कृष्णा गुरुजी दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न है कि मन को कैसे कंट्रोल करें। मेरी बुद्धि से ज़्यादा ताकतवर मन हो गया है। हाँ, बुद्धि को स्ट्रांग करिए। मन कंट्रोल नहीं हो सकता है। कैसे कंट्रोल हो सकता है? गाड़ी को कंट्रोल करो, कैसे करोगे? घोड़े को कंट्रोल करो, कैसे करोगे? जो व्यक्ति घुड़सवार है वो कंट्रोल करेगा ना लगाम से। तो इसी तरीके से बुद्धि को स्ट्रांग करना पड़ेगा। बुद्धि कैसे स्ट्रांग होगी? जब आप हरे कृष्ण महामंत्र जपेंगे ध्यानपूर्वक, आप भगवद गीता का ज्ञान लेंगी। भगवद गीता का जो कोर्स है हमारा वो सुनिए, भगवद गीता का कोर्स सुनिए। givegita.com पे जाइए, वेबसाइट पे फ्री में डाउनलोड करिए। गिव गीता ऐप पे जाइए या 7210082100 पे हमें व्हाट्सएप करिए गीता लिखकर, GITA। हम आपको फ्री में कोर्स भेजेंगे। हरे कृष्ण महामंत्र ध्यानपूर्वक जपिए, नॉलेज लीजिए, जिससे बुद्धि स्ट्रांग होगी। क्या होगी? हाँ जी, मन की मत सुनिए। हमारे गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहा करते थे, इसके मन को तो 100 जूते सुबह मारो, 100 जूते सोने से पहले मारो। इसका अर्थ क्या है? मन को जूते मारने का मतलब यह है उसकी बात मत सुनो। हर चीज को चेक करो, गुरु से, शास्त्र से। समझ में आया? करिए ऐसे, सबका मन स्ट्रांग होता है। फिर हम लोग भी उसको कैसे कंट्रोल करते हैं? बुद्धि को स्ट्रांग करते हैं, गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, मन की आज्ञा का नहीं। मन तो बहुत कुछ कहता है, बदमाश है ये तो। भगवान ने गीता ने कहा है इसको कंट्रोल करो तब ये तुम्हारा मित्र बनेगा। कंट्रोल का मतलब है गुरु की आज्ञा पे चलना, कंट्रोल का मतलब रुकना नहीं है। तो करिए ऐसा। प्रश्न करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने श्री कृष्ण भक्ति का ध्यान रखें। हरे कृष्णा। गुरुजी, प्रवीण प्रभु जी का प्रश्न है, माई क्वेश्चन इज दैट आवर पास्ट कर्मा गिव्स अस रिजल्ट ऑफ हैप्पीनेस और सैडनेस एंड वी गेट अवर बर्थ एवरी टाइम. What about our first ever birth, which karma made it possible? Forget it. You are now in the prison. Get out of it. The house is on fire. First get out and then you'll come to know. So first get out from here. Then you will not like to inquire also. Because at this moment, any time, death can approach. So start your Krishna Bhakti immediately. Without wasting one moment also. Because death can approach at any second. That is the way a spiritualist thinks. That is why he takes his spiritual life very seriously. So I would also request you that what is the use of this question? When someone pushes you into the water and you're drowning, do you ask who pushed me? First you ask everyone to save you. Save me, save me, save me. After that you can check up that who pushed you into the water. So in the same way, at this juncture, you are already in the Bhavsagar. In this ocean of nescience, go through our course on Bhagavad Gita and start practicing spiritual life. The course is available on givegita.com. It is for free. You can go to Give Gita app
or you can WhatsApp us at 7210082100. Just write Gita, Gita, and you'll receive the course free of cost. Go through it. This question doesn't have any relevance at this point of time. Thank you for asking the question. Take care of your Krishna Bhakti. Hare Krishna. गुरुजी निधि माता जी का प्रश्न है, हरे कृष्णा गुरुजी दंडवत प्रणाम, जय श्रीला प्रभुपाद। सीरियसनेस का क्या मतलब होता है? सीरियसनेस के क्या लक्षण हैं? ध्यानपूर्वक करते हो जो भी कुछ करते हो, दिल लगा के करते हो। बड़ा सरल उत्तर है इसका, है ना? गंभीरता से, गंभीर हो उसके विषय के प्रति, उसको इंपॉर्टेंस समझ रहे हो उसकी, इसलिए दिल लगा के कर रहे हो। ये है मतलब। प्रश्न करने के लिए धन्यवाद। अपने कृष्ण भक्ति का ध्यान रखिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरुजी दंडवत प्रणाम, जय श्रीला प्रभुपाद। गुरुजी, I am a BTech student. I used to chant 16 rounds and attend Mangala daily. But nowadays, it is getting very difficult because of uncontrolled mind. I am unable to chant 16 rounds and started breaking 4 rules. Please guide how I can be disciplined in my sadhana again. Nothing I can do about it. You'll have to do it yourself. You have to again come back on track. Your mind will not like to do 16 rounds. Your mind would not like to attend the morning programs. Sadhana means to basically control the wayward mind and bring it into the fold of Krishna consciousness. You like it or you don't like it, you make it a rule that you will chant 16 rounds every day. Listen to the Mangalarti. You'll attend the Mangalarti and the morning program. Make it a rule that I will not eat if I don't do this. Automatically your mind will come under control. Just try this. If, for example, if today you are not chanted, then don't eat tomorrow. And you see how fast your mind will come under your control and you'll basically do your 16 rounds. You'll have to punish the mind. The mind needs punishment. So punish the mind and see the results. It will become straight. It will follow the instructions of Krishna. Thank you for asking the question. Take care of your Krishna Bhakti. Hare Krishna. गुरुजी, नित्य आनंदरी राधा दासी माता जी का प्रश्न है, हरे कृष्णा गुरुजी दंडवत प्रणाम, जय श्रीला प्रभुपाद। गुरुजी, person who is playing the role of my husband in this life is in habit of drinking alcohol and smoking. Every alternate days he has to drink and reaches home late night. He drinks so much that he cannot even stand properly. I have no support from both of my families. We have 11 years old boy also. I do not understand if this continue for long, and if any serious health issues arises to him, where will I go and what will I do? I feel completely insecure at this stage. He never listens to me. What can you do? Your karma. You keep doing your Krishna Bhakti. Keep doing your Krishna Bhakti. Don't think about anything else. Try to save as much money as you can save. Yes, you should save. Grihastha should save. Try to save and start and give Krishna Bhakti to your son. What you are thinking may not happen. He may live long. So, but you don't leave your Krishna Bhakti. That is very important. Thank you for asking the question. Take care of your Krishna consciousness. Hare Krishna. गुरुजी, दुर्गा साहू माता जी का प्रश्न है, हरे कृष्णा गुरुजी दंडवत प्रणाम। भगवान कहते हैं कि जो मेरे शरण में आता है मैं उसके सारे पाप हर लेता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाने से हमारे पाप तो नष्ट हो जाते हैं, तो क्या अपराध भी नष्ट हो जाते हैं? अगर अपराध नहीं नष्ट होते तो जिन्होंने बहुत ज़्यादा अपराध कर लिया है तो उसका क्या होगा? क्या वो कभी भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएगा? नहीं बढ़ पाएगा। हकीकत तो यही है। इसलिए अपराध अवॉइड करिए। वैष्णव अपराध अवॉइड करिए बिल्कुल। ईर्ष्या मत करिए। अपराध का मतलब समझिएगा पहले। आप किसी को गलत कह रहे हैं उसका मतलब नहीं कि आप अपराध कर रहे हैं। किसी व्यक्ति के प्रति व्यक्तिगत कोई टिप्पणी मत करिए। जब भी हमारे यहाँ शास्त्रार्थ होता था
शास्त्रार्थ के अंदर क्या होता था? जैसे कि दो लॉयर बहस करते हैं जज के सामने, बंधु बाहर बैठ के साथ में पकौड़े खाते हैं, हैं जी, लस्सी पीते हैं। इसी तरीके से आप किसी वैष्णव को थोड़ी टारगेट कर रहे हैं। अगर कोई गलत कर रहा है तो आप बोल रहे हैं आपकी ये चीज़ गलत है, जो आप कर रहे हैं गलत है। वैष्णव अपराध करना आसान भी नहीं है, ध्यान रखिएगा। ईर्ष्या का पुट होना चाहिए जब वैष्णव अपराध बनता है। तो वैष्णव अपराध बहुत डेंजरस है। चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु ने स्पष्ट रूप में कहा है कि सबसे डेंजरस है वैष्णव अपराध। सारे अपराध डेंजरस हैं। इसलिए सुबह जब वांछा कल्पतरु भयश्च कृपा सिंधु भयश्च पतितानां पावने भयो वैष्णव भयो नमो नमः, जब ये करते हैं तो दिल से करिए, ठीक है ना। प्रश्न करने के लिए धन्यवाद। अपने कृष्ण भक्ति का ध्यान रखें। हरे कृष्णा। गुरुजी, कौस्तव प्रभु जी का प्रश्न है। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। मेरे घर वाले नॉनवेज खाते हैं परंतु मैं वेज खाता हूँ। घर में एक ही किचन है और एक ही स्टोव है, उसमें खाना पका के क्या मैं कृष्ण भगवान को भोग लगा सकता हूँ? लगा सकते हो। अग्नि कोई अशुद्ध नहीं होती, अग्नि तो शुद्ध करती है। तो अपना अलग रखो बर्तन, बनाओ, लगाओ, भगवान को भोग लगाओ और प्रसाद, महाप्रसाद पाओ। प्रश्न करने के लिए धन्यवाद। अपने कृष्ण भक्ति का ध्यान रखें। हरे कृष्णा। इनके क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है, और क्या मैं तुलसी माला को भोग में छू के उन्हें अर्पण करूं तो क्या वे उसे स्वीकार करेंगे? हाँ, तो अगर तुलसी दल आपके घर में नहीं है, आप तुलसी का पेड़ नहीं लगा रखा, लगाइए, तो तुलसी दल रख दीजिए, क्या प्रॉब्लम है? पेड़ लगाइए, लाइए, उनका ध्यान रखिए, तुलसी माता का, तुलसी देवी का ध्यान रखिए, भक्ति बढ़ेगी, घर का समस्त वास्तु दोष खत्म हो जाएगा। समझ में आया आपके? वैसे लगा सकते हैं, लगा के भी चल जाएगा, परंतु बेटर ये है कि आप जब आप घर पे कर रहे हैं तो तुलसी पौधा लगाइए, तुलसी का पौधा लगाइए। हर सनातनी के, हर हिंदू के घर में तुलसी का पौधा होना चाहिए, अनिवार्य है। प्रश्न करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी कृष्ण भक्ति का ध्यान रखिए। हरे कृष्णा। गुरुजी, विष्णु मिश्रा प्रभु जी का प्रश्न है। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। अपने मन को भक्ति में कैसे लगाएं और हम भक्ति में कैसे उन्नति करें, कृपया मार्गदर्शन करें। आपने 13 घंटे का कोर्स सुना है हमारा भगवद्गीता का कोर्स सुनिए पहले। लगता है आपने नहीं सुना। अगर सुना होता तो हम अंत में बता देते हैं 24 घंटे आप जिस स्थिति में हो उस स्थिति में रह के कैसे कृष्ण भक्ति को बढ़ा सकते हैं, कर सकते हैं। givegita.com पे जाइए, फ्री में डाउनलोड करिए कोर्स, या गिवगीता ऐप पे जाइए, या 7210082100 पे गीता लिखकर GITA हमें व्हाट्सएप करिए। फ्री में हम आपको कोर्स भेज देंगे। कोर्स सुनिए, सब पता लग जाएगा भक्ति कैसे करनी है। अब मैं आपको 2 मिनट में कैसे बताऊं, है ना जी? करिए। प्रश्न करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी कृष्ण भक्ति का ध्यान रखिए। हरे कृष्णा।